Okay, namaste everybody. Just give me some kind of an input if my audio is clear for all of you. A few of you have joined me. Just wanted to have clarity on the volume side. I was just checking the volume. Namaste Prashant, Arsu. Great. Welcome back. Welcome back to another week of the business insights from my side. Those of you who have joined in, or those of you are listening to me for the first time on YouTube, this is a business series we have started almost a month back, and I believe this is the fourth session of ours. And this is on the request of people who have been there with me for my live sessions every Saturday morning at 7. And उसमें काफ़ी inputs आते हैं on the business side, questions आते हैं on the business side. So people have been requesting that, can you spare some time on the business side of my sharing and my talks. So Saturday mornings are only life based. So हमने सोचा फिर why not shift it to on a weekday. So we have chosen Tuesday or Wednesday as a day and a time in the evening that we can have some business sessions and business sharing. So here we are. And last few weeks, these sessions have been great. Love you for all the feedback which you have given to us. We'll keep on, imbibing your inputs, your feedbacks to make this session even more better and more powerful. So keep on throwing your questions. We'll pick it up. Maybe if not this week, शायद अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते कभी भी एक number आ सकता है where I will pick up a few questions from your side. The entire objective of these sessions are number one, to give you some business insights. But number two, मैंने देखा कि मैं लास्ट 25 साल से जिस ढंग से मैं बिजनेस करते आया हूँ, and the way I've been interacting and meeting with entrepreneurs the last 25 years, and मेरा involvement, मेरे intervention उनके साथ जो हुए, उसमें एक बात समझ में आई है मुझे कि can we make things simple? और जितना simplicity से हम चीज़ों को समझ पाएंगे, उतनी ही एक possibility create होती है for they becoming a part of our lives in the form of an action. अगर हम complexity लाते हैं, we bring in a lot of kind of challenges there in terms of understanding side, तो फिर implementation में बड़े challenge आते हैं. तो जितना complex चीजें होंगी, उतने मुश्किल वो implementation में होंगी. तो जितने simple होगा, उतना ही possibility है कि उसको हम अमल कर पाएंगे. So my entire efforts the last many years have been, can I simplify things, whether it be life-based subjects, whether it be business-based subjects. तो उसी के आधार पे ये business series हमने चालू किया है. So like a few weeks back, I was speaking on leadership. We got phenomenal response on the leadership side. That what are the qualities required or a leader need to have? What is leadership all about? We understood leadership का function क्या है. And last week I spoke on the gems of entrepreneurship. जो मुझे लगता है कि what are those 3 gems which I believe they are on the top of the list of entrepreneurship. So मैंने पहला बोला कि you have to take a irreversible leap, and leaps लेते रहने पड़ेंगे. If you are looking for becoming an entrepreneur, you have to take a leap, right? If you are an entrepreneur, you have to keep on taking small or big leaps as you go on. You will not achieve or you will not be able to scale up if you don't take those leaps. तो अक्सर जो होता है, आदमी वो leap लेने पे के कगार पे आता है and then he gets stuck. And that's the first gem which I shared last week. And the second gem was a beauty where I shared about this concept that every entrepreneur has to play the trust card, and as often as you can play the trust card. So आपके पास बहुत सारे cards हैं, पत्ते हैं खेलने को, तो सबसे बड़ा पत्ता आपके हाथ में जो है वो है trust card. So you got to trust people, and you will always have the option of not trusting people and trusting people. And the third gem was that in spite of you trusting people, there will be chances where people will disappoint you. So accepting that this is a part of life is another realization. So that's what we understood last week. इस बार आज फिर मेरे पास कुछ insights हैं आपको देने के लिए, where I'm going to share on why entrepreneurs they miss out on scaling up. And बहुत सारे मैंने ऐसे ढूंढे क्या reasons हो सकते हैं. Some I've been speaking on for a long time. Some we realized over a period of time. तो उन सब में से मैंने सबसे simple but सबसे impactful 4 reasons निकाले हैं that why entrepreneurs miss out on scaling up, why they are
they are stuck in where they are, why they're not able to move up to the next orbit of their business. तो क्या वो कारण हो सकते हैं? आइए आज समझते हैं in a very simple way. You would be knowing these reasons. ऐसा नहीं कि कोई अनोखे हैं, out of the world हैं, but yes, I'm sure you will be able to connect as I would share with all of you. Great. चलिए चालू करते हैं. And you can throw in your questions about what I share as you listen to me. And let's see if I can see your questions, and if you have time, then I will answer those questions of yours. तो सबसे पहला जो एक रीजन है why an entrepreneur misses out on scaling up or going to the next orbit is कि उसकी लाइफ में confusions बहुत है. और I'll share with you the 4 confusions. In fact उसको मैंने पूरे आज जब बैठ के मैं लिख रहा था तो उसको मैंने एक ऐसा रूप दिया है where I'm calling all these reasons as confusions. ये कारण नहीं है, confusions है. और confusion जो होता है ना, ये हमेशा लाइफ में कमजोरी लाता है. ये confusions हमारी लाइफ की weaknesses हैं. और clarity जो होती है, that brings in power, that brings in strength. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि get clarity. The more you are clear, the more you will feel powerful. The more you are confused, the more you will feel weak. तो उसकी लाइफ में कुछ confusions हैं और अक्सर entrepreneur जो है इन confusions को clear नहीं करता. तो सबसे पहला confusion उसकी लाइफ का है, he confuses busyness with business. He confuses busyness कि वो busy रहता है, व्यस्त रहता है. He thinks that is business. And this confusion does not allow him to scale up. अब इसके हल्का से इसके अंदर जाते हैं and you will connect with what I am saying. अगर आप देखो कि let's go back to the journey of an entrepreneur. तो कहीं ना कहीं किसी समय वो कहीं ना कहीं एक टीम मेंबर के रूप में काम कर रहा था. Right? He was an employee in some organization once upon a time. अगर वो first generation entrepreneur है, अगर वो second generation entrepreneur है तो maybe he must have worked somewhere or he may have directly joined his family business. तो let's go back to understand this concept called who is an employee. तो अगर आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि employee कौन है, तो आपके आंसर आएंगे एम्प्लॉय है जो काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉय वो है जो किसी के अंडर काम करता है या किसी का दिया हुआ काम जो है उसको वो पूरा करने में अपना टाइम लगाता है, एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड देयर विल बी मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर अटैच्ड टू बीइंग एन एम्प्लॉय. तो अगर मैं आपको बोलूं कि एम्प्लॉय कौन है, एम्प्लॉय इज नथिंग एल्स बट अ पर्सन हु इज चेजिंग सम वर्क. ही हैज agreed to give certain number of his hours every day, right? और उस सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स में वो कहता है कि ये मेरी काबिलियतें हैं, ये मेरे स्किल सेट्स हैं, ये मेरी नॉलेज है, इस नॉलेज और स्किल सेट्स के साथ मैं आपके पास आया हूं एंड आई हैव रियलाइज दैट ये आपके पास काम है जो मुझे लगता है मैं कर पाऊंगा. एंड दे गो इनटू एन एग्रीमेंट, द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, दे गो इनटू एन एग्रीमेंट दैट ओके you do this work and for this effort of yours you will be compensated in so and so way. And that's how the employer and the employee go into a kind of a contract or an agreement. तो ऐसे ये एम्प्लॉय ज्वाइन करके काम करता है. नाउ द एम्प्लॉय हैज गिवन हिज आवर्स, चाहे वो 8-10 घंटा हो तो उसने 8-10 घंटे अपने दिए हैं और उस 8-10 घंटे के अंदर जो है वो काम करता है. जो एम्प्लॉयर है उसकी सोच रहती है कि कैन आई मैक्सिमाइज ऑन दीज 8-10 आवर्स व्हिच आई हैव गॉट. ही शुड बी एबल टू प्रोड्यूस, ही शुड बी एफिशिएंट. दैट्स व्हाट द एम्प्लॉयर्स थॉट प्रोसेस इज. तो ऐसा इन दोनों का ये जुगलबंदी चलती रहती है where he gives his hours and he wants maximum output from those hours. उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, we will not go into it because that's not a subject for today, that he has to be trained, he has to be made better, he has to be worked upon and things like that. वो आज का सब्जेक्ट नहीं. अब क्या होता है, ये एम्प्लॉय जो है ये कुछ साल काम करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर and over a period of time he realizes that there is this employer who is giving him some work, I'm doing that work and that work translates into some service, some product which a customer is benefiting from. Now वो उसको ये सीरीज समझ में आती है कि एम्प्लॉयर है जो काम दे रहा है, काम बता रहा है, मैं काम कर रहा हूं, उस काम से एक कस्टमर का बेनिफिट होता है एंड द कस्टमर पेज द एम्प्लॉयर हु फ्रॉम दैट पेमेंट ही पेज मी समथिंग. ऐसा उसको ये सीरीज समझ में आता है आफ्टर वर्किंग फॉर सम इयर्स. फिर उसके भाई मन में लगता है कि जब मैं ये काम कर रहा हूं और इस काम से ये कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है, कैन आई डायरेक्टली गो टू द कस्टमर
and give that service of mine to the customer so that I get paid by the customer directly and it does not go to the employer and from there it comes to me. So that's where he decides to become a businessman. He decides to become an entrepreneur. जो उसको लगता है वो entrepreneur बनना है, लेकिन मेरी नजरों में उसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड. तो उसने अपना आप को एम्प्लॉय करने का एक सिला चालू किया, एक उसने एक स्टेप ले लिया. So now then he leaves the organization and he starts his own business. It can be of a service कि वो सर्विस करता है या फिर वो प्रोडक्ट बनाता है, तो कुछ लोगों को लेके वो प्रोडक्ट बनाने का काम चालू करता है. He sets up a place where he can manufacture the product or he sets up an office where from where he can provide the service. अभी इसने अपना काम चालू किया. Now he is directly dealing with the customer, with the end user, and he is directly getting benefited from there. लेकिन क्या है कि इसने इतने साल से काम किया है तो इसकी आत्मा इज वन ऑफ एन एम्प्लॉय और आत्मा ट्रांसफॉर्म होने में समय लगता है, वो बदलने में थोड़ा समय जाएगा. लेकिन शुरुआत तो उसकी हुई कि वो उसने एम्प्लॉय के रूप में काम किया और अभी जो है वो खुद का काम कर रहा है, बट आत्मा उसकी एम्प्लॉय की है. मतलब क्या है, पहले भी वो काम चेस करता था तो आज भी वो काम चेस करता है. फर्क इतना है कि पहले जब वो काम चेस करके काम पूरा करता था उसका एम्प्लॉयर उसको पैसा देता था. आज जब वो काम चेस करता है, काम के पीछे भागता है, वो पेमेंट खुद को देता है. तो ये सोच से वो उसने अपना बिजनेस चालू किया और उसको पैसा मिला अच्छा, बिकॉज द एंटायर मनी कम्स टू हिम एंड फ्रॉम देयर ही पेज ऑफ व्हाटएवर इट इज टू पीपल एंड ही सेव्स सम मनी फॉर हिमसेल्फ. अब उसको ये लगता है कि हाउ डू आई मेक मोर मनी. नाउ एज एन एम्प्लॉय इफ ही वर टू वर्क फॉर another 3, 4, 5 hours, he may not get some extra money or he may get some incentives, but he may not get that kind of money. But in his own business, he realizes that the more he works, जितना वो काम करता है उतना उसको पेमेंट मिलता है. जितनी वो और मेहनत करता है और समय देता है उतना ज्यादा और उसको पैसा आता है. तो फिर क्या होता है, वो अपने आप को काम में झोंकता रहता है, क्योंकि उसकी समझ क्या है कि इफ आई डू वर्क आई गेट मनी. एंड वो हकीकत भी है कि वो काम करता है तो पैसा मिलता है, तो वो शाम के कुछ घंटे देना चालू करता है, वो अपने संडे को भी उसमें देना चालू करता है, वो छुट्टियों में भी काम करना चालू करता है, बिकॉज एवरी टाइम ही पुट्स हिमसेल्फ इनटू वर्क ही मेक्स मनी. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुद को व्यस्त रखना, खुद को बिजी रखना becomes the norm for him. And whenever he has kept himself busy, he has made some more money. चाहे वो बिजी होने का तरीका किसी और को ना रख के वो काम खुद करने का भी हो सकता है, that he does not keep enough people and he does all the work there, and वो पैसा बचाता है लोगों को ना रखने से और वो पैसा भी वो कमाता है. तो he believes that the more I work, the more money I'll make, and somewhere he keeps himself busy. उसको ऐसा लगने लगता है कुछ समय बाद that being busy is what business is all about. अब ये it's a subject which I go deeper into when I take my programs, but in the shortest possible time मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे बड़ा कारण एक ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट ऑर्बिट में ना जाने का है कि एक एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेसमैन सोचने लगता है that being busy is all about business. एंड फिर जब ऐसी उसकी सोच हो जाती है तो बिजी रहने के लिए तरीके हजार हैं. तो आप अपने आप को व्यस्त कर लो, चाहे वो छोटे काम हो, बड़े काम हो, चाहे आपके काम हो, चाहे किसी और के काम हो. काम तो बहुत है कंपनी के अंदर, बट इफ दिस थॉट प्रोसेस इज इन योर माइंड दैट बीइंग बिजी इज ऑल अबाउट बीइंग इन बिजनेस, देन यू विल स्टे बिजी फॉर ऑल द टाइम व्हिच यू हैव. अगर आपके पास दिन में 48 घंटे भी होंगे, आप उसमें भी बिजी रहोगे. सो आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, बिजीनेस इज नॉट बिजनेस. और ये जब तक सोच रहेगी कि मैं बिजी रहूं, तो आप क्या करोगे, अपने काम तो करोगे, आप दूसरों के काम भी करना चालू कर दोगे, क्योंकि आप उसकी सोच क्या चल रही है, अगर मैं इन कामों के लिए लोग लेके आऊंगा तो फिर उसके लिए भी पैसे देना पड़ेगा. तो पैसा ना देना पड़े या पैसा कमाने का तरीका मेरी सोच में यह है कि मैं वो काम कर लूं तो मुझे उसकी सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, तो वो पैसा मेरा हो जाएगा. ये भी मैं कर लूं तो इसका भी पैसा देना नहीं पड़ेगा, तो ये भी मेरा पैसा हो जाएगा. सो दैट्स हाउ द एंटरप्रेन्योर स्टार्टेड वर्किंग. और ये इनिशियली सोच सही थी, बिकॉज जब इनिशियल बिजनेस चालू किया तो नहीं था ना पैसा देने को, तो हमने सब काम किया. हमने अकाउंट्स का भी काम किया, हमने सेल्स का भी काम किया, हमने परचेस का भी काम किया, हमने डिलीवरी का भी काम किया, हमने इनवॉइस भी बनाए, इनवॉइस हम डिलीवरी देके भी आए, रिकवरी का भी काम किया हमने. और हमने सारे काम किए जो हमारे बिजनेस में लगते थे, क्योंकि नया था काम, पैसा नहीं था. वी डिडंट हैव द वेयरविथऑल टू डू एवरीथिंग. सो हमने अपने बलबूते पे सारा काम किया.
और फिर हमने वो पैसा कमाया। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ये सोच बैठ गई, बन गई कि यही तरीका है पैसा कमाने का, कि काम करते रहो, नॉट रियलाइजिंग दैट दिस विल बिकम आफ्टर सम टाइम, एक समय के बाद दिस विल बिकम द बिगेस्ट हर्डल. So being busy is not the way to grow the business. Asking yourself this question: what am I busy about? What am I busy about? अरे व्यस्त तो चीटियां भी रहती है ना, काम ही करती रहती हैं. तो व्यस्त रहना is not about business. Busy रहना is not about business. आप किस चीज में busy हो? That's a question you got to ask. So from here you have to move on to understanding and asking कि मेरे काम क्या है as the CEO of the company, as the head of the company, मेरे काम क्या है? क्या मैं अपने कामों में बिजी हूं? Then it makes sense. या फिर मैं सिर्फ बिजी हूं? Then it doesn't make sense. So number one, सबसे बड़ा कारण confusing busyness with business. Second, namaste everybody, those who have joined in late. I'm sure you got some insights on it. You can ask me some questions if you have any, and we'll sail through this as we continue. So you have any questions, you can ask me those questions. Second reason why businesses don't scale up is where entrepreneurs, they confuse technical expertise with business expertise. अब सुनो इस बात को. entrepreneurs जो है अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज, जिसकी वजह से वो एंटरप्रेन्योरशिप में आए, जिसकी वजह से वो बिजनेस में आए, बिकॉज टेक्निकली बड़े स्ट्रांग थे. तो कोई सेल्स में बड़ा स्ट्रांग था, कोई डिजाइनिंग में बड़ा स्ट्रांग था, कोई ऑटोमेशन में बड़ा स्ट्रांग था. तो सब अपने अपने एरियाज, अपने स्ट्रेंथ में, अपने एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ में थे, और उनको लगा कि यार ये तो हमारी पकड़ बड़ी अच्छी है, तो क्यों ना हम इसमें अपना बिजनेस चालू करें. तो लोगों ने अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज की वजह से अपना एक बिजनेस चालू किया. So somebody was strong in sales, उसने कहा I can sell, so let me start this business and I'll start selling this. तो ऐसा करके लोगों ने अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज से काम चालू किया. अब क्या हुआ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन जैसे बिल्ड हुआ, तो आपका एक झुकाव होता है, और वो झुकाव जो बायस होता है, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स व्हाट यू आर स्ट्रांग इन. तो कोई टेक्निकल साइड में बड़ा स्ट्रांग है, कोई टेक्नोलॉजी साइड में बड़ा स्ट्रांग है, कोई रिलेशनशिप साइड में बड़ा स्ट्रांग है. तो सब अपने अपने स्ट्रेंथ्स को लेके आते हैं, और जाने अनजाने में क्या होता है, सिंस यू स्टार्टेड योर बिजनेस ऑन दैट स्ट्रेंथ, दैट बिकम्स द कोर फोकस एरिया ऑफ द कंपनी. Now, nothing wrong in it. When it becomes the core focus area of the company, that's where the company makes money from. But over a period of time, जब वो आपका टिल्ट या आपका झुकाव उस एरिया में हो जाता है, it kinds of gives you a tunnel vision, कि आपकी विजन जो है सारी उस टेक्निकल एक्सपर्टीज की ओर हो जाती है. तो आप अगर सेल्स में माहिर हैं और आपने सेल्स की वजह से अपना काम चालू किया, तो जाने अनजाने में पूरी ऑर्गेनाइजेशन की आत्मा सेल्स की हो जाती है. अगर आप टेक्निकल साइड में बड़े स्ट्रांग हैं, तो जाने अनजाने में पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है टेक्निकल साइड में टिल्ट हो जाती है, एंड एवरीबॉडी इज ऑन द टेक्निकल साइड. अगर आप टेक्नोलॉजी में बड़े स्ट्रांग हैं, तो दैट्स वेयर इट इज देयर. तो आप मशीनिंग में बड़े स्ट्रांग हैं, तो मे बी समवेयर द ऑर्गेनाइजेशन विल बी वेरी स्ट्रांग ऑन द मशीनिंग साइड. नाउ नथिंग रॉन्ग इन इट, बट एक सर्टेन लेवल के बाद देयर हैज टू बी अ बैलेंस इन बिजनेस. And that's where you will see a lot of entrepreneurs. जब मैं मिलता हूं उनसे, तो क्या होता है, on the commercial side they're weak, on the technical side they're very strong, on the sales side they might be very strong, but they are not strong on the people side, on the human relationship side. They may not be very strong on the product development side. तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में वो स्टिल्ट की वजह से that they will start experiencing some challenges, because now the business is at a certain level कि जहां पर अभी आपको all round काबिलियत चाहिए. सो यू नीड टू, जितनी काबिलियत आपको टेक्निकल में चाहिए, तो उतनी कमर्शियल में चाहिए, जितनी कमर्शियल में चाहिए उतनी उतनी ऑन द परचेज साइड चाहिए, उतनी ऑन द रिलेशनशिप साइड चाहिए, उतनी ऑन द मार्केट साइड चाहिए. तो वो बैलेंस लाना बड़ा जरूरी हो जाता है. लेकिन अक्सर एंटरप्रेन्योर ये कंफ्यूज करता है दैट आई एम स्ट्रांग इन द टेक्निकल साइड, दिस मींस आई नो एवरीथिंग अबाउट बिजनेस. और जहां पर ये बात आ गई कि आई नो एवरीथिंग अबाउट बिजनेस, फिर वहां पर शटर बंद हो जाता है. शटर बंद हो जाता है, तो फिर कुछ नया सीखने की इच्छा, संभावना हम बंद कर देते हैं. बिकॉज वी वर स्ट्रांग ऑन द टेक्निकल साइड, सो वी फील वी नो बिजनेस. बट ऐसा तो नहीं है. कुछ तो बिजनेस के बारे में सीखना, जानना, समझना रह गया होगा ना. बिकॉज द कंपनी वेर यू आर वर्किंग इन,
You were working in a certain department. You were not working in the company where you had all the clarity about the business. You were working in some department, और उस department की काबिलियत लेके आपने अपना business चालू किया, लेकिन बाकी पहिए आपके वीक हो जाते हैं, उसपे हवा कम होती है, सिर्फ आप ही का टेक्निकल वाला व्हील वो बढ़िया चल रहा होता है, and that's where the company becomes imbalanced, and आप scale up नहीं कर पाते. Second reason, you confuse technical expertise with business expertise. In fact, मैं भी मिलके आया आज मेरी मीटिंग थी with one of the entrepreneurs. He had been calling on me to visit his factory, and a very sound team, and the CEO level, who was the person who was there, I met him, and my so entrepreneur asked me, sir, आपका क्या view है after meeting my senior leadership team? I said, the only thing which I feel I can give you as of now, the insight is कि इनको अभी यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, because somewhere they start, इनको लग रहा है कि ये शॉप फ्लोर पे खड़े होकर काम करवाना, मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन रन in terms of the orders in hand, यही बिजनेस है, जबकि सीईओ लेवल में ये बिजनेस का एक पार्ट है. There is something bigger about business than getting work done. And he says, you got it, sir. यही चीज मैं इनको समझा नहीं पा रहा हूं, because technically strong है तो लगता है यही जिंदगी है, यही बिजनेस है. So that's the second reason. Third is a very beautiful part, which is on the people side. Entrepreneurs confuse longevity with loyalty. They confuse longevity with loyalty. मतलब क्या है कि कोई उनके साथ पिछले 5 साल 10 साल से आदमी काम कर रहा है, सो काफी लंबे समय से साथ में है, तो उनको लगने लगता है कि यार ये इंसान हमारा लॉयल इंसान है. तो दे कंफ्यूज लॉन्जेविटी कि ये इतने लंबे समय से काम कर रहा है, इसका मतलब लॉयल है. ऐसा शायद ना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा, बट मैं कह रहा हूं शायद ऐसा ना हो, बिकॉज वो आपके साथ रहने का उसका भी कारण हो सकता है कि उसको मालूम है कि यार ये कंफर्ट जोन आ गया मेरा, अभी मेरी जिंदगी यहीं खपने वाली है. ऐसा भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि साहब when he started his work he had certain skill sets, और वो स्किल सेट से आपको बेनिफिट हुआ, उसको भी बेनिफिट हुआ, और अभी वो कंपनी का एक अच्छा हिस्सा बन गया है, राइट. ऐसा भी हो सकता है कि मे बी ही इज नॉट contributing enough now to the company, but you are ignoring it unknowingly because आपको लगता है इतने साल से साथ में है, and how do I ask him to now work on himself? तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि एक इंसान लंबे समय तक आपके साथ है, that is not to be taken as a person who's loyal. तो समझते हैं कि लॉयल की डेफिनेशन क्या है. यहां पर प्रॉब्लम क्या आता है, एंटरप्रेन्योर को लगता है कि जो इंसान मेरे लिए खड़ा है वो लॉयल है, और जो लोग लंबे समय से हैं वो हमेशा एंटरप्रेन्योर के साथ खड़े थे, बिकॉज जब एंटरप्रेन्योर कुछ नहीं था, कंपनी कुछ नहीं थी, ये लोग साथ खड़े थे, और इनका रिश्ता उस एंटरप्रेन्योर के साथ बड़ा अच्छा बन गया. जब रिश्ता अच्छा बन गया तो दे आर डेडिकेटेड टू द एंटरप्रेन्योर, दे आर लॉयल टू द एंटरप्रेन्योर. लेकिन समय के चलते चलते तो एंटरप्रेन्योर बिल्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड नाउ द लॉयल्टी हैड टू शिफ्ट फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर टू द कंपनी, व्हिच डिड नॉट हैपन. सो दीज पीपल आर देयर फॉर लॉन्ग, ये लंबे समय से हैं, और इनकी लॉयल्टी एंटरप्रेन्योर के लिए है, बट देयर लॉयल्टी हैज टू बी फॉर द कंपनी. और एंटरप्रेन्योर की भी लॉयल्टी कंपनी के प्रति होनी चाहिए, ना कि किसी और के प्रति, कंपनी के विजन के प्रति होनी चाहिए, बिकॉज कंपनी इज बिगर देन एनीबॉडी. उस कंपनी के अंदर में तो सब लोग हैं, उस घर के अंदर तो सब लोग हैं. लेकिन जब एक एंटरप्रेन्योर कंफ्यूज कर जाता है कि लंबे समय वाला आदमी लॉयल है, वो लॉयल आपके लिए हो सकता है लेकिन शायद कंपनी के लिए नहीं है, इसका मतलब ही इज नॉट द राइट गाय. लेकिन जब हम लंबे समय को लॉयल्टी मान लेते हैं तो फिर हम कुछ एक्शन जो हमें लेने चाहिए हम ले नहीं पाते. कुछ कड़कपन दिखाना पड़ता है, हम कड़क हो नहीं पाते. कुछ डिमांड करना होता है, हम डिमांड नहीं कर पाते. कुछ लोगों को हटाना होता है, हम हटा नहीं पाते, बिकॉज वी थिंक दे आर लॉयल. So you got to ask yourself, is my team loyal to the company's vision, or is my team loyal to me, or is the team not loyal to neither me nor the company? They may be there for long, but they may not be loyal to you, and they may not be loyal to the company. The worst case scenario, वो लंबे समय तक है लेकिन लॉयल नहीं है. सेकंड केस सिनेरियो, वो लंबे समय तक है लेकिन आपके प्रति लॉयल है, कंपनी के प्रति नहीं है. बट द बेस्ट केस सिनेरियो इज वो लंबे समय से हैं
और कंपनी के प्रति लॉयल. So the team has to be loyal to the company's vision, not to the entrepreneur. Entrepreneur तो आएगा जाएगा यार, लीडरशिप तो आएगी जाएगी, कंपनी तो वही रहेगी. So this is the third confusion which an entrepreneur has. तो पहला हमने बात करी, he confuses busyness with business. Second हमने कहा, he confuses technical expertise with business expertise, कि उसको लगता है कि अगर technically strong हूं तो मुझे business के बारे में सब कुछ आता है. And this becomes the biggest stumbling block, क्योंकि वो कुछ सीखता नहीं है, कुछ समझता नहीं है. And third is, उसको लगता है that longevity, where people have been there for long, ये इसका मतलब ये लॉयल होंगे. अरे वो नहीं गया आपके ऑफिस से, आपके फैक्ट्री से, आपके बिजनेस से, वो छोड़ के नहीं गया. शायद उसकी मजबूरी होगी कि उसको कहीं जाना नहीं होगा, उसका गांव बगल में है, उसका घर बगल में है, तो उसको लगता है सबसे बढ़िया कंपनी यही है जो मुझे नजदीक में मिली है. He's not staying because he's loyal. He's staying because it is convenient for him. Or he's staying with you because he knows he will not get a job somewhere, right? Or he knows that ये तो कभी मुझे निकालेंगे नहीं, मेरी तो नौकरी यहाँ पक्की है. That's why he's staying there. So you got to ask this question: that are the people in the company loyal to the company? And the fourth confusion which people normally have is, or which entrepreneurs have, which stops them from growth, is where they confuse teamwork with blind obedience. बड़ा अच्छा पॉइंट है, सुनो इसको. They confuse teamwork with blind obedience. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि टीम वर्क का मतलब क्या है कि लोग काम कर रहे हैं और साथ काम कर रहे हैं, and they all are working in alignment. They all are working together to achieve a common goal. ये हमने सुना है टीम वर्क की डेफिनेशन, that people come together and they work in harmony to achieve a common goal. सहजता के साथ, आपस में तालमेल के साथ, आपस में प्यार मोहब्बत के साथ, they are going for the completion of a common goal. इसको टीम वर्क बोलते हैं. लेकिन अक्सर एंटरप्रेन्योर कंफ्यूज कर जाता है कि इनका साथ रहना, इनका they go on working together is all about blind obedience. कि इन्होंने बस ओबीडियंटली काम करना चाहिए, इन्होंने बिल्कुल सवाल नहीं पूछना चाहिए, इन्होंने बिल्कुल दिमाग वापरना नहीं चाहिए, एंड दे शुड जस्ट डेडिकेट देमसेल्व्स टू द टास्क, और ऐसा इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए उसमें. इसको बोलते हैं ब्लाइंड ओबीडियंस, कि आपने पट्टी बांध ली, आपने कहा जो हुक्म मेरे आका, और आपने ऐसा कर दिया. दिस इज नॉट टीम वर्क. टीम वर्क का मतलब क्या है कि हर एक इंसान अपनी काबिलियत को झोंक रहा है, हर एक इंसान अपने नॉलेज को डाल रहा है, हर एक इंसान अपने इंटेलेक्ट को यूज कर रहा है. तो वो इंटेलेक्ट यूज करता है, वो कहता है ये सही नहीं चल रहा है, तो वो उसको समझ आता है कि यार ये काम सही नहीं चल रहा, अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकलेगा, या ऐसा करेंगे तो लॉन्ग रन में कंपनी को नुकसान होगा. तो वो क्या करता है, वो उस काम को होने से रोकता है, बिकॉज ही नोज फॉर मी द एंड रिजल्ट इज मच मोर इंपॉर्टेंट. तो वो ओबे नहीं करता है ऑर्डर, वो डिसओबे करता है. उस समय ऐसा लगता है कि यार हाउ कैन ही गो अगेंस्ट अस, बट इन द लॉन्ग रन that person has got the benefit of the company in the long run in mind. लेकिन एंटरप्रेन्योर को लगता है ऐसे लोग जो सवाल पूछते हैं, ऐसे लोग जो अपना इंटेलेक्ट यूज करते हैं, ये लोग शाने होते हैं, और हमें ऐसे शाने लोग नहीं चाहिए. और अक्सर ऐसे लोगों को एंटरप्रेन्योर अपनी टीम का हिस्सा नहीं मानता. उसको लगता है कि टीम वर्क का मतलब क्या है, काम दिया तो अभी काम करते रहो, सवाल ना पूछो. तो बड़ा जरूरी है ऐसे लोगों का मिक्स होना, या ऐसे एक मिक्स आपके पास लोग होने चाहिए जो शार्प हो, इंटेलिजेंट हो, क्वेश्चंस पूछें. और वो क्वेश्चंस तंग करते हैं यार. कोई भी सवाल करता है आपसे कि ये काम ऐसे क्यों करना है, तो आपको मुश्किलात होगी, क्योंकि इजी क्या ऑप्शन है कि यार इसको काम बोला, भी ये काम कर देवे. एक है कि आपने काम बोला और उसमें वो क्वेश्चन करता है कि सर इसको ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं क्या. तो ऐसे में आपको लगता है कि यार ये ऐसे सवाल क्यों कर रहा है, बिकॉज इजी वे इज गेट द जॉब डन. बट आपको ये भी समझना है कि अगर ऐसे लोग हैं आपके साथ, तो शायद काम को बेहतर करने का एक ऑप्शन क्रिएट होता है, काम को बेहतर करने का एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है. एंड that's how organizations grow, that there are people who are questioning the processes because उनका इंटेंट अच्छा है, उनकी सोच अच्छी है, उस इंटेंट से ये क्वेश्चन कर रहे हैं, उस इंटेंट से ये लोग डिसओबे कर रहे हैं कुछ चीजों को. बट डिसओबे करना भी तो टीम वर्क का हिस्सा है, that you're not accepting the wrong, that you're not accepting
एनीथिंग, ये भी तो टीम वर्क है। और आप कहते हो कि यार जो सही होगा वो करेंगे ना, ये भी तो टीम वर्क का हिस्सा है। तो अक्सर एंटरप्रेन्योर कंफ्यूज करता है कि टीम वर्क का मतलब है कि बस अभी काम करो, अभी काम में विघन मत डालो। वो इनके सवालों को विघन मानता है, रुकावट मानता है, and that's where he misses on scaling up. So surround yourself with some intelligent people. Have in your team some great guys who will be sharp enough to ask you questions. मैं तो हमेशा बोलता हूं कि have people who are better than you, have people who are much more capable than you. That's how the organization will grow and go to the next level. So this is what I had to share in today's business session, business minds, or whatever you want to call it. Sunday ka happy minds hota hai. So a lot of people said, can we call it business minds? I said, you want to call it anything you call, but I'm sure this would have given you some insight for today, some food for your business acumen to go to the next orbit. Just ask these questions to yourself. Am I confusing busyness with business? Ask yourself कि मैं दिन भर busy था, मैंने करा क्या? And could there be a better thing which I could have done? Could there be a higher thing which I could have done? Was it a part of my job profile, doing what I was doing? और हर entrepreneur जाने अनजाने में अपने से एक या दो लेवल नीचे काम करता है. And same is the case with this team. The team is working 1 or 2 levels below. तो जब अपना काम हम नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारा काम कौन कर रहा है? So it's not about staying busy. It's all about being busy doing the right job. Second is, don't confuse technical knowledge or technical expertise with business expertise. Business एक बड़ी चीज है. टेक्निकल एक्सपर्टीज उसका एक हिस्सा है. आपने शायद उससे काम चालू किया होगा उस एक्सपर्टीज की वजह से, बट वो एक्सपर्टीज आपकी पूरी बिजनेस की समझ नहीं है, बिकॉज बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं. So pick up insights on business, right? So learn about business. Move out of your technical comfort zone and go into the business understanding. कि business होता कैसे. And third is, of course, don't confuse a long-term employee with the thought that a long-term employee is a loyal employee. I'm not doubting people. I'm not saying go doubt people, but don't confuse. उस confusion में शायद आपके पास ऐसे लोग होंगे जो बहुत लंबे समय से हैं, लेकिन शायद वो कंपनी को आगे ले जाने के लिए सक्षम नहीं है. ऐसा हो सकता है. And of course, the fourth one is टीम वर्क का मतलब ब्लाइंड ओबीडियंस नहीं है. टीम वर्क में कुछ लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ रुकावट डाल सकते हैं फॉर द लार्जर बेनिफिट, फॉर द बिगर बेनिफिट ऑफ द कंपनी. ऐसे लोगों को भी आपने ध्यान में रखना है कि दे आर आल्सो ग्रेट गाइस, राइट? सो डोंट ब्रिंग इन slavery, a slave approach where everybody just works because you have said they have to work. तो ऐसा अगर आपने चार चीजों को ध्यान में रखा, आई एम श्योर बिजनेस विल बी ऑन अ नेक्स्ट लेवल, ऐसा मुझे लगता है. Loyalty is not an alternative to incompetence. Absolutely, Rajesh. I couldn't agree with you more, right? Sometimes we start believing that people who have been there with us for long, out of some kind of an inner compulsion, we accept their incompetence. एंड कोई जरूरत नहीं है. अगर आप अपनी कंपनी के प्रति लॉयल हैं, आप उनके इनकॉम्पिटेंस को एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिकॉज यू आर आंसरेबल टू द कंपनी. If the company had a voice, if the company had a presence, and the company would ask you, hello, why do you have this incompetent guy? And you would say, nahi, he has been there with me for the last 10 years, and he was there with me when I had nobody. And how can I not have him now with us because he gave his time to me when I was alone? The company would say, that is okay, you reward him for that. But now as a company, I need better people. I need people who are competent to take me to the next orbit. So the past performance or the past contribution of a person should be suitably rewarded. And I'm not saying let go. Either you make them competent, tighten them up, you make them understand the requirement, and if they are not able to match up the pace, there is no option but to let go or to give them a different profile. But the company cannot stop growing just because some people who are there at the beginning of the company with you, they are holding some key positions and they're not performing there. नहीं हो सकता, right? So they cannot be, उनका term with you cannot be
seen as loyalty. Don't confuse that. Loyalty has to be towards the vision of the company only, for everybody. Whether the person is there for you for 1 year, whether the person is there with you for 10 years, the loyalty is towards the vision of the company. So, पहले के ज़माने में loyalty की definition थी कि सर I'm going to be with you for 10 years, I'm loyal to you. आज की definition है loyalty की, सर जब तक हूँ आपके साथ मैं loyal रहूँगा. अब वो जब तक का मतलब ये 2 महीना है, 6 महीना है, साल भर है, but जब तक हूँ मैं I'm loyal to the company. That's the definition today. And I think that's not bad. जब तक है वो, he is working for the company. Great enough. So make a great week, and I'm sure you will work on these insights, some basic insights, and next week I'll be again there with all of you with some more beautiful insights on the business side. Till then, stay excited, stay charged, and you can throw your questions to my team or on the social media, and I will pick up a few subjects from there and share with all of you. So take your business to the next orbit, be loyal to your company, to your company's vision, and I'm sure there will be something exciting which will be an outcome of all the efforts from your side. So all the best, and take charge.